السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو رضیہ سلطانہ یوٹیوب چینل۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں سمیرہ حمید کا لکھا ہوا خوبصورت ناول یارم۔ ہوپفلی آپ کو یہ ناول آڈیو کی صورت میں بہت پسند آ رہا ہوگا۔ جلدی سے میرے نئے ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا۔ میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کا بے حد شکریہ۔ میرے چینل کی حوصلہ افزائی کرتے رہا کریں تاکہ میں آپ کے لیے اچھی تحریریں آڈیو کی صورت میں پیش کرتی رہوں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ یارم، آڈیو بائے رضیہ سلطانہ۔ چینی کہتے ہیں اگر میں ایک سرسبز شاخ سے اپنے دل کو سجاؤں تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک خوش گلو پرندہ اس پر آ کر نہ بیٹھے۔ # محبت کرنے سے پہلے احترام کرنا سیکھیے۔ اور یہ بھی کہ ایک بوڑھے کا عشق میں مبتلا ہو جانا خزاں میں پھول کھلنے کے مترادف ہے، اور خزاں میں محبت کا پھول ہی کھلنے کی جرت کرتا ہے۔ چینی اپنے سال کے آغاز سے پہلے پورے جوش و خروش سے اپنے گھروں کو صاف کر کے سجاتے ہیں۔ نئے کپڑے، خاص طور پہ سرخ لباس بنواتے ہیں۔ سرخ کاغذوں اور سرخ پارچہ جات پر لکھی روایتی نظموں سے گھر کے دروازوں، دیواروں اور ایسے ہی دوسری جگہوں کو سجاتے ہیں۔ نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ پرانا وقت بیت چکا ہے۔ پرانے وقت کو الوداع کہا جائے گا۔ نئے وقت کے لیے جشن تیار ہے۔ بڑے بوڑھے بچوں کو سرخ لفافوں میں ملفوف لکی منی خوش قسمتی کے سکے دیتے ہیں۔ چینی روایات کہتی ہیں کہ سرخ رنگ آگ کی علامت ہے جو ان کے سیانوں کے بقول بد قسمتی اور بدی کو دور کرتی ہے۔ قدیم وقتوں میں لمبے بانسوں کو جلایا جاتا تھا تاکہ بدی اور بلائیں آگ کو دیکھ کر بھاگ جائیں۔ شرلو آگ سے دفان کیا جاتا ہے۔ پہلے چاند کی 15 کو سرخ چینی ساختہ لالٹینوں کا تہوار منایا جاتا ہے۔ عبادت گاہوں کو سجایا جاتا ہے اور ہاتھوں میں لے کر شام کو چاند کی روشنی میں پریڈ مارچ کیا جاتا ہے۔ چینی سال بہار کا آغاز دعاؤں کے ساتھ خوشیوں کو لیے بدی کو دور کرتے، روایات کو زندہ رکھتے، سرخ روشن منظم اور پرجوش سال کے آغاز پر اپنی میزوں کو ڈمپلنگز روایتی چینی کھانا سے سجاتے ہوئے، دعائیں دیتے ہوئے، چاولوں کے جاروں کو بھرتے ہوئے کہ نئے سال پر چینی چاول کے جار کا خالی رہ جانا بدقسمتی کی علامت سمجھتے ہیں۔ مینچسٹر میں اس سال کی ڈریگن پریڈ نئے سال کی پریڈ کے لیے تیاریاں عروج پر تھی۔ پریڈ 31 دسمبر جنوری نئے سال کے پہلے دن تھی۔ پریڈ 31 دسمبر جنوری نئے سال کے پہلے دن۔ یہ سال گھوڑے کا سال تھا۔ پچھلا سال سانپ کا سال تھا۔ امراہا کی چینی کلاس فیلو جسن نے سب کلاس فیلوز کو رجسٹریشن کروانے کے لیے کہا تھا، وہ امراہا کے پاس بھی آئی تھی۔ میں تو جانتی بھی نہیں کہ یہ سن کیا ہوتا ہے۔ میرے لیے تو کھڑے ہو کر دیکھ لینا ہی بہت بڑی دریافت ہوگی۔ کہاں اس میں شرکت کرنا؟ پریڈ میں جاؤ گی تو سب جان جاؤ گی۔ تمہیں زندگی میں کھڑے ہو کر پریڈ دیکھنے کے تو کئی مواقع مل جائیں گے، شرکت کرنے کے نہیں۔ اس سال تو 90,000 سے زیادہ لوگ شرکت کریں گے۔ وہ ہنسنے لگی۔ نہیں، میں نے یہ سب کبھی نہیں کیا۔ جو کیا نہیں وہ کرو گی بھی نہیں۔ چینی پاکستانی کو نہ نہیں کہتے۔ ایک پاکستانی چینی کو نہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ غیر چینی لوگ پریڈ میں شرکت کرتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ نئے سال کا آغاز ہم نے سب کی اقوام کی دعاؤں اور محبت سے کیا ہے۔ ہم دونوں تو ایشیائی خطے کے 2 اہم دوست بھی ہیں اور ہمسائے بھی۔ قطار میں 3 غیر ملکی کھڑے ہوں تو ہم پہلے پاکستانی کے آگے بو کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ مجھے ہنسی آئے گی۔ امراہا کو ابھی بھی تامل تھا تو ہنستی رہنا، بلکہ چھلانگے لگانا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ روتے بسورتے لوگوں کا وہاں کیا کام؟ ویسے تم کس جانور کا لباس پہننا پسند کرو گی؟ میں انتظام کر دوں گی۔ چاہو تو کوئی ماسک نہ پہننا، تم ڈریگن کا بانس بھی پکڑ سکتی ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں مسلسل حرکت میں رہنا پڑے گا۔ تم تھک جاؤ گی۔ میں روایتی چینی لباس کمونو پہنوں گی اور میرے ہاتھ میں بڑا سا چینی پنکھا ہوگا۔ میک اپ میرا بہت گہرا ہوگا۔ چاہو تو تم میرے ساتھ یہ بن سکتی ہو، یا تم 2 بڑی گول دھاتی پلیٹوں پر مشتمل ساز، دونوں پلیٹوں کو آپس میں ٹکرایا جاتا ہے، بجا سکتی ہو، یا ڈرم، لیکن تمہیں ڈرم بجانے کی پریکٹس نہیں ہوگی۔ نہیں، میں کمونو نہیں پہن سکتی۔ گہرا میک اپ تو ہرگز نہیں۔ اگر تم شرما ہی رہی ہو تو تم ڈریگن والا لباس پہن لو۔ اسے پہن کر قطعاً یہ معلوم نہیں ہوگا کہ تم کون ہو، لڑکی یا لڑکا۔ تمہارے مخصوص مشر کی جھجک بھی قائم رہے گی۔ بھلے سے ماسک کے اندر شرماتی گھبراتی رہنا، ہنسی کہکے لگاتی رہنا۔ امراہا دل کھول کر ہنسی۔
ٹھیک ہے، میں ڈریگن بن جاتی ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں یہ تمہاری زندگی کا یادگار لمحہ ہوگا، تم پر قسمت مہربان ہوگی۔ امراحہ اور زیادہ مسکرانے لگی۔ قسمت کی مہربانی کا انتظار رہے گا۔ اس نے چینی سال کی رات سب مل کر چائنا ٹاؤن گئے۔ چائنا ٹاؤن کی حدود کے آغاز پر سرخ پیلے سبز رنگوں سے مزین چینی طرز کا بڑا پھاٹک تھا، جن کے دونوں اطراف جانوروں کے بڑے بڑے مجسمے رکھ دیے گئے تھے۔ سب سے بڑا مجسمہ گھوڑے کا تھا۔ ایک بہت بڑے ڈریگن کو بانسوں کی مدد سے اونچائی پر ٹانگ دیا گیا تھا، اور بھی کئی طرح کی سجاوٹ تھی۔ جا بجا چینی روایتی چیزوں کے سٹالز لگے تھے۔ مینچسٹر کے درختوں کی شاخیں تو پہلے ہی سرخ گول چینی ساختہ لالٹینوں سے سجا دی گئی تھی۔ این، ویرا اور وہ مزے سے مفت چینی کھانے کھاتے رہے۔ تمام سٹالز پر کھانے بہت کم قیمت پر دستیاب تھے یا مفت تقسیم کیے جا رہے تھے۔ امراحہ ایک چینی تحفہ بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ایک عدد چینی شادی شدہ جوڑا اپنی شادی کی سلور جبلی پر تحائف تقسیم کر رہا تھا، اور مینچسٹر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا وہاں اتنا رش تھا کہ لگتا تھا کہ سب اسٹوڈنٹس آئندہ زندگی صرف اس ایک تحفے پر گزارنے والے ہیں۔ یہی ان کا کل خزانہ ہے، اور اس اثاثے کو آج کسی بھی صورت حاصل نہ کر سکنے پر وہ دنیا کے بد قسمت ترین انسان قرار پانے والے ہیں۔ تحفے میں ایک عدد سرخ روایتی پارچہ تھا، جس پر چینی زبان میں دعائیہ نظم لکھی تھی، اور ایک گلے میں پہننے کے لیے چینی طرز کی مالا تھی، اور 2 سرخ ریبن تھے۔ امراحہ کو 2 عدد سرخ ریبنوں کی سمجھ نہیں آئی۔ جب ان میاں بیوی کے سٹال پہ رش کم ہو گیا اور ان کے سب تحائف تقسیم ہو گئے تو امراحہ نے ان سے پوچھا، ایک تمہارے لیے اور ایک تمہارے شوہر کے لیے۔ جب مجھے انہوں نے، چینی خاتون نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا، پرپوز کیا، تو یہ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس کوئی انگوٹھی نہیں تھی، تو انہوں نے ایک اسکول کی بچی کے بالوں میں سے ریبن کھول کر میری انگلی میں باندھ دیا کہ مجھے کوئی انگوٹھی والا نہ لے اڑے۔ دونوں میاں بیوی کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ امراحہ دیکھ سکتی تھی دونوں نے کس محبت سے اپنی زندگی گزاری ہوگی۔ سرخ ریبن امراحہ کی آنکھوں میں بس گئے۔ آنکھوں کے پاس لا کر وہ انہیں دیکھنے لگی۔ اسے ایک دم سے ڈر لگنے لگا کہ یہ ریبن کہیں کھو نہ جائے۔ اس نے انہیں اپنے کراس بیگ کی محفوظ ترین جیب میں رکھا، پھر ہاتھ کو کراس بیگ کی جیب پر مضبوطی سے جما لیا۔ اسے لگا سارے چوروں کی نظر اس کے ان 2 عدد ریبن پر ہی آ گئی ہے۔ سرخ نظمیہ پارچہ ویرا نے اپنے بال کھول کر سر پر باندھ لیے، اور مالا این اون نے پہن لی۔ امراحہ نے یہ چیزیں اسے دی تھی۔ لاؤ وہ ریبن بھی میری کلائی پر باندھو، ایک تم باندھ لو۔ امراحہ نے ویرا کو نہیں بتایا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کہانی منسلک ہے۔ امراحہ کی جیسے جان ہی نکل گئی۔ وہ میں #پاکستان لے کر جانا چاہتی ہوں۔ ریبن؟ ویرا حیران ہوئی۔ امراحہ نے سر ہلایا۔ میں پہن کر تمہیں واپس کر دوں گی، اس پر جو ستارے لگے ہیں مجھے وہ اچھے لگے ہیں۔ میں نے ابھی ریبن نہیں باندھا، میں انہیں انچھوا رکھنا چاہتی ہوں، امراحہ نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ بعض معاملات میں تم بہت عجیب ہو امراحہ، مجھے لگتا ہے میں پوری کی پوری ہی عجیب ہوں۔ امراحہ کو اپنے عجیب ہونے پر اس رات کوئی شرمندگی نہیں ہوئی، اور وہ ریبن کے معاملے میں اس قدر عجیب ہونے پر خود کو جانچ بھی نہ سکی۔ وہ خود کو بھی نہ بتا سکی کہ سرخ فیتے یکدم اس کے لیے اتنے اہم کیوں ہو گئے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم خود سے بھی چھپا کر بہت کچھ کرتے ہیں، خود کو پاگل بناتے ہیں، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب مستقبل قریب میں آپ بہت رونے والے ہوتے ہیں، تب جب آپ کو خبر ہو جاتی ہے کہ آپ نے خود سے کیا چھپا کر کیا۔ انسان اپنی طرف سے بڑی ترکیبیں بناتا ہے نا، پھر ایک دن سب ترکیبیں اسے ڈس لیتی ہیں۔ وہ صرف ایک ہی سوال کرتی ہیں، ہمیں کیا سمجھ کر اندھیرے میں رکھا؟ وہ تینوں ہاتھوں میں ہاتھ دیے چائنا ٹاؤن میں سجے میلے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ سرخ لالٹینوں کے سامنے کھڑے ہو کر تصویریں بنوا رہی تھی۔ سجاوٹ قابل دید تھی، مسکراہٹیں اس سے زیادہ قابل دید تھی۔ اسٹوڈنٹس کا ہجوم اس سے بھر کر محبت رتن دیپ سے سجی رت جس کا سوار ابدیت کی طرف اڑان بھرتا ہے۔ محبت امرت دھارا سے لبالب بھرا جام محبوب ہے جو کبھی پیندے سے نہیں لگتا۔ سب سے زیادہ کتابیں محبت کی لکھی گئی ہیں، سب سے زیادہ گیت محبت کے گائے گئے ہیں۔ محبت وہ کمال ہے جو عرش کو فرش کرتا ہے اور فرش کو عرش تک لے جاتا ہے، اور زمین پر 2 ہی چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے جان دی جا سکتی ہے،
मोहब्बत और फिर मोहब्बत। मोहब्बत इब्ने अरबी का नजरिया अहलियत है जो नादीदा को दीदा बना सकती है। ऐसा इसमें आज़म जो मजाजी को हकीकी करता है। हकीकी को इश्क 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 बिलाशुबा वो खते हक जो खुद पर मुनकरी हराम रखता है। कालीन हाफ के फन का वो अरूज जिसके रेशे रेशे में अकीदत सर सजूद होती है, सर सजूद ही रहती है। यही शर्ते वफा है। कलंदर का मादियत से खाली तन और इश्क हकीकी से सजा मन। मोहब्बत महराबी पेशानियों के महराबी नूर से तौबा के आखिरी मंदरजात कबूलियत के अव्वलीन दर्जात सी अर्शे मुअल्ला हला डालने वाली मुहतरम हस्ती माँ की दुआ सी बंजर बंजर धरती पर पहली कौमपल सी और मोहब्बत खुदा के रहम से और रहमत से रात भर चीनी दुआएं मांगते रहे होंगे। खाने की मेज़ों के गिर्द खानदान इकट्ठा किए, हाथ जोड़े और खुदा को याद करते, सेहत और तंदुरुस्ती की दुआएं करते, मोहब्बत और मुद्दा सराई करते। चीनी बाहर मुस्कुराते रहे होंगे। अगली रात जश्न हो तो पिछली रात नींद नहीं आया करती, वो भी नहीं सो पाए होंगे। मैनचेस्टर शहर की अगले दिन बड़ी तकरीबात में शुमार होने वाली ड्रैगन परेड का आगाज अल्बर्ट स्क्वायर से शाम 4 बजे हो चुका था। परेड का आगाज बड़े बड़े चीनी रवायती सुर्ख और पीले ड्रमों और परक्यूशंस दो गोल बड़ी दाती प्लेट्स को पुरजोर अंदाज से बजाकर और बुलंद आवाज से नाराए बहार को खुशामदीद खुशबख्ती के लिए तैयार हैं हम से किया गया। परेड के आगे दरमियान और आखिर में ड्रमों और परक्यूशंस को मुसलसल बजाया जा रहा था और जिनकी आवाजें बिलाशुबा सोरीला समा बांध रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब जुलूस की सूरत नई जिंदगी के सफर पर रवां दवां हों। परेड में शामिल हजारों लोगों ने हजारों तरह के स्वांग रचा रखे होंगे। परेड में आगे कई 100 मीटर लंबे मोटे ड्रैगन को बांसों पर उठाकर घुमाया, नचाया और उछाला जा रहा था। ड्रैगन इतना बड़ा था कि उसे कम से कम 150 अफराद ने अपने कद से ऊंचा करके उठा रखा था। वो सब मुसलसल उसे कुदरती हरकत में रखे हुए थे। यूं गुमान होता था असली ड्रैगन उनके सरों पर उठा रहा है। ड्रैगन के पीछे और दरमियान में कई 100 चीनी बच्चों का ग्रुप था जो गर्दन में ड्रम लटकाए उन्हें रिदम से बजाते आहिस्ता रवि से चल रहे थे। बच्चों के लिबास सफेद थे जिन पर उन्होंने सुर्ख रुमालों को गर्दन में तिरछा करके बांध रखा था। तकरीबन इन्हीं बच्चों की तादाद जितना एक और ग्रुप उन लड़कियों का था जो चीनी रवायती लिबास को मोनो पहने हुए थी और हाथ में बहुत बड़े साइज के चीनी रवायती पंखे पकड़ रखे थे। इन लड़कियों का मेकअप बहुत गहरा था। आंखें कुदरती आंखों से बहुत बड़ी बनाई गई थी। ये सब यक जुबान धीमी आवाज में चीनी रवायती गाना गा रही थी, साथ ही रवायती रक्स पेश कर रही थी। एक ग्रुप सुर्ख लिबास में चीनी मार्शल आर्ट की अक्कासी कर रहा था। बहुत सौ के हाथों में चीनी साख्ता बड़ी बड़ी पतंगें थी जो मुख्तलिफ जानवरों की अशकाल पर मबनी थी और जिन्हें फिजा में छोड़ा गया था और इनकी डोरों को अपनी कलाइयों में बांध रखा था। बहुत से लोग अलग अलग गेटअप में भी थे। वो चीन के तारीख से मुंसलिक मुख्तलिफ शख्सियात का सवांग रचाए हुए थे। उनके मेकअप और लिबास कमाल के थे। 2-2 के जोड़े बने, बहुत से कोई एक बड़ा जानवर बने हुए थे, यानी एक ही लिबास में एक सर था और दूसरा धर, और ये 2 लोग ड्रैगन या चीता बने मुसलसल भागते घूमते और नाचने में मसरूफ थे। हजारों अफराद की ड्रैगन परेड में हजारों सवांग थे। कोई खरगोश बना उछल रहा था, कोई घोड़ा बना दौड़ रहा था, कोई बंदर के लिबास में तमाशे दिखा रहा था और कोई चीता बना डरा रहा था। सब सवांग चीनी रवायात तारीख उनकी मुआशरत के आकाश थे। मशरिक में उगा चीन मगरिब में चल फिर दौड़ रहा था। हकीकी कौमों की यही निशानी है। वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, उसी दरख्त की शाखें तने और पत्ते लगते हैं जिस दरख्त की जड़ उनकी धरती में उगी होती है। चंद एक ऐसे ग्रुप थे जिन्होंने सुर्ख लिबास पहने थे और हाथों में बड़ी बड़ी धाती प्लेटें पकड़ रखी थी और वो उन्हें बजाते चले आ रहे थे। परेड में बड़े बड़े जानवरों के मुजस्मे थे जिन्हें बाहों के जरिए उठाया गया था। ये साल घोड़े का साल था, इसलिए घोड़ों के मुजस्मे ज्यादा थे। एक बड़ा और ऊंचा घोड़ा परेड के आगे और पीछे चल रहा था। गर्ज हर तरफ सवांग थे, रंग थे, लोग थे। चीन था, तारीख थी, बहार थी, नया साल था। सुर्ख और पीला रंग छाया हुआ था। ड्रमों की थाप कमाल की थी।
सारा मैनचेस्टर उमड़ आया था परेड देखने के लिए। आसपास के शहरों से भी लोग खास परेड देखने के लिए आए थे। सड़क के दोनों तरफ खड़े अफराद का शौक दीदनी था। वो मैनचेस्टर की तारीख में होने वाली शानदार परेडों में से एक को देख रहे थे। इमराहा ड्रैगन के लिबास में थी, वीरा और एनओन भी साथ थी। इन सब ने ड्रैगन का स्वांग रचाया था और वो घोड़ों, मुर्गों, खरगोशों, सांपों, बंदरों और बाकी जानवरों के साथ चल रही थी। जब इमराहा ड्रैगन बनी तो हंसते हंसते दोहरी हो गई और उसने परेड के साथ चलने से इनकार कर दिया। फिर उसने महसूस किया कि जेसन ठीक कह रही थी कि वो अपने बड़े और चौड़े ड्रैगन मास्क के अंदर जितना भी चाहे हंस सकती है, शर्मा सकती है, झींप सकती है। वो सरता पाँव ड्रैगन के मोटे लिबास में थी। बाहर सबको एक ड्रैगन नजर आता था, इमराहा नहीं। जैसा कि उसने वीरा को देखा तो उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि वो वीरा है। यकीनन उसके ड्रैगन को देखकर भी नहीं बूझा जा सकता था कि उसके अंदर इमराहा है। सड़कों से सुस्त रवि से गुजरते चाइना टाउन की तरफ जाते मुख्तलिफ जगहों पर उन पर रंग बिरंगी झंडियां बरसाई गई। उन्हें फिजा में वक्फे वक्फे से छोड़ा जा रहा था और फिजा कई मीटर बुलंदी ऐसे रंग बिरंगी हो जाती जैसे तितलियों के काफिले उन पर टूट पड़े हों और उन्हें इससे सलाम दुआ लेने की जल्दी हो। इमराहा ने अब खुलकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। वो ड्रैगन बनी हाथ हला हला कर बच्चों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी। उसे मजा आ रहा था, उसे सब बहुत अच्छा लग रहा था। जहां जहां उन पर रंग बिरंगी झंडियां बरसाई गई थी वहां इमराहा को लगा था ये सब उसके लिए किया जा रहा है। इस सारे जश्न का एहतमाम सिर्फ उसी के लिए किया गया है। लाहौर में छुप छुप कर रोने वाली इमराहा एक मनहूस मान लिए गए इंसान के लिए। इमराहा अफसोस कर रही थी कि वो क्यों रोती रही थी। जिंदगी में आप नए लोगों, नए खुशियों, नए जश्नों से रोशनास होते हैं तो माजी के दुख बेमैनी और छोटे लगते हैं। अपनी बेवकूफी पर मातम करने को जी चाहता है कि क्या नादानी करते रहे हैं। जिंदगी की धार में दुख और सुख दोनों बहते हैं। दुख बहने दिया जाए और सुख पी लिया जाए और नया माहौल आपको नया असबाक जरूर पढ़ाता है। कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ आपकी मर्जी से, कुछ जबरदस्ती। असबाक से घबराना नहीं चाहिए। ये कितने भी तलख हों, हकीम लुकमान की हिकमत लिए होते हैं, बिला मुआवजा हिकमत देकर जाते हैं। तो अब रंग थे, जश्न था और कहके थे। मौसम नम नम था। जनवरी का आगाज दिन था और चीनियों के लिए साल का पहला दिन। इस बात की इलामत कि जहां कुछ खत्म हो रहा होता है ठीक वहीं से कुछ और शुरू हो रहा होता है। निज़ाम कुदरत इस जन्म मर्गे जन्म का नाम है। साल जा रहा है, अरे नहीं, साल तो आ रहा है। शाम गहरी हो चुकी थी। वो 1.5 घंटे से चल रहे थे लेकिन थकन ने आज उनसे दोस्ती कर ली थी। वो फूलों से लदी दूर ही हाथ हिला रही थी। वो चाइना टाउन के करीब पहुंच रहे थे। दूर से परेड के इस्तकबाल के लिए बजाए जाने वाले ड्रमों और दूसरे साजों की आवाजें आ रही थी। इमराहा ड्रमों पर जोर थाप और दाती प्लेटों की गूंज में ये नाम उसके करीब मीठे सुर संगीत लिए गूंजा। उसके करीब ही एक और ड्रैगन खड़ा था। वो कद में उससे ऊंचा था। ड्रैगन ने मास्क उतारा और वो मुस्कुरा दिया। वो आलियान था। वो उसके पास खड़ा था। उसके जो एक लड़की है इमराहा, शहरे रोशन, शहरे कलमकार, शहरे बेमिसाल लाहौर से। इमराहा ने उसे देखा। उसे जो एक लड़का है आलियान, शहरे अफकार, शहरे लाजवाल मैनचेस्टर से। नए साल के पहले दिन, बहार के पहले दिन, शहरे बेमिसाल, शहरे जवाल के बासी साथ साथ खड़े हैं और एक मोहब्बत है जहां बेमिसाल, जहाने लाजवाल, जहाने जादुआं 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 से। इमराहा को बिल्कुल मालूम नहीं हुआ कि वो भी इस परेड में शामिल है। इतने हजारों लोगों में वो चाहती भी तो मालूम नहीं कर सकती थी। उसे सिर्फ अपने क्लास फेलोज का ही मालूम था। आलियान को देखकर लग रहा था कि जैसे वो आखिरी वक्त में किसी तरह से ड्रैगन लिबास हासिल करने में कामयाब हुआ था और अफरा तफरी में परेड में शामिल हुआ और उसे तलाश करता रहा है। दाद दो मुझे, मैंने तुम्हें इतने सारे जानवरों और मास्कों में से पहचान लिया। दाद देती हूँ तुम्हें, इतने सारे हजार लोगों में से जो अपनी शक्ल और वज़ाकता छुपाए हुए थे। किसी एक को ढूंढ निकालना काबिले दाद था। 200-250 के करीब तो सिर्फ इमराहा जैसे ड्रैगन ही थे।
कितनी जबरदस्त परेड है ना ये इमराहा। वो उसके साथ साथ चलने लगा। ड्रैगन का सर उतार कर उसने हाथ में पकड़ रखा था ताकि उसकी आवाज आसानी से सुनी जा सके। इमराहा को वो मामूल से ज्यादा खुश लगा। इमराहा, मुझे ऐसे जश्न, ऐसे त्यौहार जब सब खुश हों, गा रहे हों, मुस्कुरा रहे हों, बहुत अच्छे लगते हैं। उसने सड़क के किनारे खड़े परेड को दिलचस्पी, शौक, जोशो खुशी से देखते एक छोटे से बच्चे के गाल पर नरमी से चुटकी भरते हुए कहा। फिर उसने उसी बच्चे के साथ खड़े दूसरे बच्चे के बालों में बहुत मोहब्बत और लगावट से हाथ फेरा। उसके अंदाज बता रहे थे कि वो गैर मामूली तौर पर जोश और खुश है। तुम्हें भी तो पसंद है ये सब? उसने उसके सर के पास सर झुका कर कहा। हाँ, मुस्कुराहटें किसे अच्छी नहीं लगती, इमराहा को चलाकर बताना पड़ा। आलियान ने कान को उसके मांस के करीब झुका दिया। उसने ऐसा खुशी से किया। इमराहा शहरेजाद बनी। उसे हजारों रातों पर मोहित अलिफ लैला सुनाती तो शायद वो खुशी से सर को ऐसे ही झुकाए रखता, सर ना उठाता। हाँ, लेकिन कभी कभी तो इन सब के साथ भी मुस्कुराहटें अच्छी नहीं लगती। उसने आसपास के सारे माहौल की तरफ इशारा करके कहा। ये तो कुछ हो जाने से सब अच्छा अच्छा लगता है। एक बच्चा जो अपने बाप के कंधों पर सवार था और तालियां बजा रहा था, उसने गाल पर नरमी से चुटकी भर कर कहा। बच्चा खिलखिला उठा और अपने बाप के बालों को शरारत से मुट्ठियों में जकड़ लिया। इमराहा ने मास्क उतार दिया। उससे ठीक से आलियान की आवाज नहीं सुनी जा रही थी। क्या होने से अच्छा लगता है? इमराहा उसकी बात ठीक से सुन नहीं सकी थी। हिजूम के शोर की वजह से उसे चलाकर पूछना पड़ा। आलियान ने जरा रुक कर उसकी तरफ देखा। रुक गया, रोक दिया गया। शायद वो फैसला कर रहा था। मोहब्बत के हो जाने से उसने बिला वजह ही चला कर कहा, जबकि इमराहा अपना मास्क उतार चुकी थी। चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। यकीनन वो ड्रैगन परेड में शामिल एक एक इंसान को भी सुनाना चाह रहा था। सड़क की तरफ में खड़े मर्दों, औरतों, बड़े बूढ़ों और बच्चों को भी, सारे मैनचेस्टर को, सारी दुनिया को। उसके होंठों से निकले अल्फाज की गूंज यकीनन चाइना टाउन की मेहराब के पास 30-40 बड़े बड़े ड्रमों को अपने साथ रखे सुर्ख लिबासों में पीली पट्टियां सर पर बांधे चीनियों तक भी गई होंगी। उन्होंने लफ्ज मोहब्बत की गूंज को पाकर उसे अपने अंदर उतार कर भरपूर जोश से, अकीदत व एहतराम से दोनों हाथों में पकड़ी ड्रम स्टिक्स को सर से ऊपर उठाकर सुर्ख ड्रमों की पहली जमीन पर दे मारा। मोहब्बत के साथ की पहली गूंज गूंजी। मशरिक ने मगरिब में आकर मेला सजा दिया। इस्तकबाल का आगाज हुआ। खुश आमदीद। बहार को गले लगाने के लिए हम बेताब हैं। बहार की आमद आमद है। खिजा को रुखसत हो जाना चाहिए। आओ लफ्ज मोहब्बत से इब्तदा करें। आओ इसकी इंतहा करें। रजूम शहाब साकिब का एक तवील काफिला रक्से कना गहरी हो चुकी शाम में रुख अबर की स्याह धारी से होता हुआ आलियान और इमराहा के सामने से गुजरा। वो अबाक मबहूत अबाबील थी। वो जहाँ की तहाँ खड़ी थी। मेरा दिल चाहता है मेरी शादी ऐसे ही हो। उसकी भूरी आंखों में कई खुशकुन चमकदार रंगों की धारियां तलातम मचाने लगी। जानवरों की तरह। इमराहा ने दोबारा गलती नहीं की आलियान की तरफ देखने की। नहीं, वो हंसा। ऐसे परेड की सूरत, इतने ही लोगों और साजों के साथ। वो बरतानिया का शहरी था ना, तो ये ख्वाहिश क्यों ना रखता कि उसकी शादी भी शाही शादी जैसी हो। परेड की सूरत, बारात जाए, बग्गी में बिठाए और अपने दुल्हन को वापस लाए और आसपास खड़ा हिजूम उन पर मुस्कुराहटों और दुआओं के साथ फूलों की बारिश कर दे। वो और उसकी दुल्हन हाथ हिला हिला कर सबकी मुस्कुराहटों का जवाब देते हों। दुनिया भर में शाही खानदान की शादियां देखने वाले जिंदगी में कम से कम एक बार ये ख्वाब जरूर देखते हैं कि उनकी शादी भी प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस विलियम की तरह हो। वो तो फिर बरतानिया का शहरी था। उसने ये ख्वाब कम से कम 100 बार तो जरूर देखा होगा। अच्छा ख्वाब देख लेना चाहिए। अगले साल चीनी नए साल पर तुम अपनी ये हसरत पूरी कर लेना। इमराहा ने उसे अच्छा मशवरा दिया था। हाँ, ये अच्छा मशवरा ही था बेशक। रजूम का एक और काफिला इस बार सिर्फ आलियान की आंखों के आगे से गुजरा और इस बार वो इन भूरी आंखों में ही ठहर गया। वो एक लख्ते के लिए सोच का शिकार हुई। फिर उन्होंने झट काफिला रजूम की बागें अपने हाथों में थाम ली।
फैसला हो चुका था। वो इमराहा को सारी रोशनियां अपने अंदर समोए देख रहा था। ईरान में जेवर का किनारा है। इमराहा ने उसे अच्छा मशवरा दिया था। हाँ, ये अच्छा मशवरा ही था। बेशक रजूम का एक और काफिला इस बार सिर्फ आलियान की आंखों के आगे से गुजरा और इस बार वो इन भूरी आंखों में ही ठहर गया। वो एक लख्ते के लिए सोच का शिकार हुई। फिर उन्होंने झट काफिला रजूम की बागें अपने हाथों में थाम ली। फैसला हो चुका था। वो इमराहा को सारी रोशनियां अपने अंदर समोए देख रहा था। ईरान में ज़रयूर का किनारा है। एक खसरू कमाली है, उसका बाब है और उसके होंठों पर अमीर खुसरू की रुबाई की सूरत है। अज आमदंत अगर खबर मी दानिस्तम, अगर तेरे आने की खबर मुझे मिले। पेश खिदमत कुचाए रागुल मी कुंतुम, मैं तेरे कदमों में से पहले गली में फूल बिछाऊं। गुल मी कुशुम गुल गुलाब मी कुंतुम, फूल बिछाऊं, गुलाब के फूल बिछाऊं। खाक कदमत पदीदम बारम दानिस्तम, तेरे कदमों तक खाक पर अपना आप वार दूं। यारम यारम यारम, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे महबूब। झील की लहरें रक्स करने लगी। वो खुसरू कमाली और उसके रुबाब पर फिदा हैं। उसके होंठों से निकलते गीत पर निसार हो जाती हैं। परिंदे खुसरू कमाली के सुर पर गोल गोल घूमते जाते हैं। वो इस गीत पर कुर्बान हो जाते हैं। खुसरू कमाली पेशानी पर गुलाबी रुमाल बांधे उस किनारे की तरफ देखता जाता है जहाँ से ज़ोहरा अफंदी को आना है। वो आएगी, ज़रूर आएगी। उसका रुबाब दुआ गो है, उसका गीत सरसजूद है। पिमाना बदा जाम दे पिमाना बदा के खुमारा स्तम, ऐसा जाम दे कि मुझे खुमार आ जाए। मन आशिक चशम मस्त यारा सतम, मैं यार की मस्त आंखों का आशिक हूँ। बुदा बुदा दे बुदा बुदा दे। वक्त ने अपने लबों पर परीत भरी मुस्कुराहट सजाई। रक्से किना लहरों ने खुसरू कमाली के सुरों को चूमा। हवा ने रुक जाना जरूरी जाना खुसरू कमाली के लिए, उसकी ज़ोहरा अफंदी के लिए। गुल मी कुशुम गुल गुलाब मी कुशम, यारम यारम, पर वालों ने कोक दी। ज़रयूर झील ने पानी की बूंदों को तारों की मानित जगमगा लिया। रुबाब ने मनाजात में सोज दूर पैदा किया और खुसरू कमाली ने आवाज़ को नरमी से बुलंद किया, बुलंद से और बुलंद किया। यारम यारम यारम, सदाए मुल्क तक जा पहुंची। ज़ोहरा अफंदी का दिया गुलाबी रुमाल झूम झूम लहराया। ठीक है, मुझे मंजूर है। रुबाब ने मनाजात में सोज दूर पैदा किया और खुसरू कमाली ने आवाज़ को नरमी से बुलंद से और बुलंद किया। यारम यारम यारम, सदाए मुल्क तक जा पहुंची। ज़ोहरा अफंदी का दिया गुलाबी रुमाल झूम झूम लहराया। ठीक है, मुझे मंजूर है। हम अगले साल इसी दिन शादी कर लेंगे। हाथ में पकड़ा ड्रैगन मास्क इमराहा के हाथ से फिसल कर गिर गया, जिसे उठाने के लिए वो कतई नहीं झुकी। उसे उठाने के लिए वो पहले से ही झुक चुका था। हम रंग रेज ने सारे रंग उस पर उछाल दिए, खासकर पीला, लेकिन फिर भी वो बेरंग खड़ी रही। वो सफेद धरती नहीं थी जिसे मनपसंद रंगों से रंग दिया जाता। उसने कहा, हम कश्मीर की कली उफ्क ने धाती प्लेटें बजाते हुए फरजाम के करीब होकर सरगोशी की। हाँ, मैंने सुना। उसने कहा, हम। फरजाम ने ड्रम बजाते कहा और वो उसके आगे मास्क उठाने के बहाने झुक भी गया। उफ्क शरारत से मुस्कुराई। रंग बिरंगी झंडियों की बौछार फिजा में छोड़ी गई। खुशामदीदी का शोर बुलंद हुआ। धाती प्लेटें एक साथ कई 100 हाथों में गूंजी। ड्रमों पर साजंदों ने गोल गोल घूमकर अंत मचा दी। चीनी रक्साओं ने सुर्ख लिबासों में खुद को फिजा में उछाला और चीनी रक्स की इब्तदा की। उसने कहा, हम। लो, अब तो इब्तदा हो गई। हिजूम ने पुरजोश नारे लगाए। बहार की आमद के जश्न को उन्होंने यादगार बना दिया था। फिजा मुश्कबार हो चुकी थी। तिब्बत से मुश्कबार परी यहाँ आ चुकी थी, फरजाम और उफ्क के बुलावे पर, इमराहा और आलियान के लिए। उसके पैरों में गिरे मास्क को उठाकर वो उसे वापस दे रहा था। परेड आगे जा रही थी। वो दोनों एक ही जगह खड़े थे। तुमने सुना इमराहा, मैंने क्या कहा? इतनी प्यारी बात पर उसके लिए एक मुस्कुराहट तो बनती थी। वो मुस्कुराहट उसे नहीं दी गई थी। मुझसे शादी करोगी इमराहा? लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा।
तुम सोचने के लिए वक्त ले सकते हो, लेकिन इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सारा मैनचेस्टर इकट्ठा कर डालूंगा। अपने कमरे की खिड़की के बाहर जब तुम सारे मैनचेस्टर को खड़ा देखोगी तो तुम्हें हाँ का बोर्ड उठाकर सबको दिखाना ही पड़ेगा। वो अपनी रो में बोल रहा था। वो आलियान था। हाँ के बिलबोर्ड पर उसका हक था, क्योंकि वो सारे मैनचेस्टर को इकट्ठा कर लाने की सलाहियत रखता था। मेरी मंगनी हो चुकी है पाकिस्तान में। मेरी वापसी का इंतजार किया जा रहा है। मेरी शादी होनी अटक कर वो इतना ही कह सकी। रजूम की सब काफिलों ने अपनी बागें आलियान के हाथों से छुड़वा ली। खुसरू कमाली के रुबाब की तान टूटी। उसकी मनाजात सहम गई। रतनदीप से सजी रुत उड़ान भरती मुंह के बल पाताल की तरफ लपकी। कालीन बफ के हकीकी पाटा में आग भड़की। सड़क के किनारे परेड देखती खातून के गोद के बच्चे ने चिल्ला कर रोना शुरू कर दिया। चीनियों का मानना है कि साल के पहले दिन बच्चों का रोना निजस होता है। चीनी औरत सहम से गई और उसने शद्दोमत से बच्चे को चुप करवाना शुरू कर दिया, लेकिन बच्चा और रोने लगा। वो रोता ही जा रहा था। ये क्या किया? ये कैसे? अभी तो कुलकारियां मार रहा था। उसने ताली भी बजाई होगी। भांत भांत के जानवरों को देखकर वो कैसे महफूज भी हुआ होगा। चीनी रक्साओं की तरह वो भी नाचना चाहता होगा। उसने अपनी माँ से ड्रम बजाने की फरमाइश भी की होगी। फिर ये सब करके भी वो अब रोने लगा। वो क्यों रोने लगा? और एक गीत था खुसरू कमाली का, आलियान मार्गरेट का, लफ्स लफ्स तराना, लफ्स लफ्स मुर्सिया, और एक सास रुबाब जरयू झील किनारे बजता हुआ, ड्रैगन प्लेट में गूंजता हुआ, फिर झील के पैंदे में गूंगा पड़ा हुआ। इमराहा भूरी आंखें स्याह पड़ने लगी। उसने इमराहा को ऐसे देखा जैसे वो उसे कोई धोखा दे रही हो और वो जांच रहा हो कि उसे धोखा क्यों दिया जा रहा है। तुम ये सब क्या? उसे समझ नहीं आई कि सवाल को किन अल्फाज से तरतीब देकर मनपसंद जवाब पा सके। भला ऐसा भी होता है कभी? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं बहुत खुश हूँ। तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया? हम तो दोस्त हैं ना। लेकिन प्लीज तुम दोबारा ऐसा कुछ ना कहना, जल्दी से कहकर उसने मास्क पहन लिया और परेड के साथ आगे बढ़ने लगी। और फिर सारी परेड आगे बढ़ने लगी। सारी दुनिया, सारी कायनात, सिर्फ एक वजूद खड़ा था, साकत पत्थर का हो चुका था। वो आलियान मार्गरेट के अलावा कोई ना था जो सारे मैनचेस्टर को इकट्ठा करके उसकी खिड़की तक ले जाने वाले था। वो सारे मैनचेस्टर में अब खुद को ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठा करता फिरेगा। चीनी माँ रोते बच्चे को चुप करवाने में नाकाम हो चुकी थी। उसकी शक्ल गहरे सायों की जद में थी। वो अपने अकीदों पर पुख्ता यकीन रखने वाली लगती थी और इसीलिए परेड में उसकी सारी दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी और वो जेरे लब दुआएं कर रही थी कि नए साल में नहुसत और बुलाएं इससे दूर रहें। लेकिन बच्चा चुप ही नहीं हो रहा था। परेड चाइना टाउन की मेहराब के अंदर दाखिल हो रही थी। ड्रमों की थाप अब कान के पर्दे फाड़ रही थी। आलियान का दम घुट रहा था। फिर भी उसने ड्रैगन मास्क पहन लिया और पहले आहिस्ता रवि से फिर तेजी से परेड को पीठ दिखाकर भागने लगा। अजीब इंसान था। वो 2 कदम पर मेहराब थी और वो वहां तक ना जा सका और उल्टी तरफ भागने लगा। उसका ड्रैगन मास्क बहुत बदहैबत लगने लगा था। उस बदहैबत को देखकर डर कतई नहीं लग रहा था, बस दिल मुट्ठी में आया लगता था। इमराहा चीनी साख्ता मेहराब के पार हो गई और फिर उसने हिम्मत करके गर्दन मोड़ कर देखा। कोई बहुत बेदर्दी से परेड को चीरता भाग रहा था, जैसे उसके आस पास आग भड़कती हो, नहीं जैसे उसके अंदर आग लगी हो। उस ड्रैगन ने खुद को परेड से अलग किया और लोगों के हिजूम में खुद को गुम करते अपने मास्क के अंदर ही खुद को बिलक बिलक कर रोने दिया। इमराहा ने खुद को लोगों की भीड़ में गुम कर दिया। वो भी मास्क उतारने की गलती नहीं कर सकती थी। वो लोग खुद को भीड़ में गुम करने की कोशिश करते रहे, भीड़ से निकलने की भी, अलग हो जाने की भी और मिल जाने की भी। एक वक्त में इतनी ख्वाहिशें मैनचेस्टर की कुशादा सड़कों पर फैली हजारों लोगों से अटी ड्रैगन परेड मातमी जुलूस की सूरत इख्तियार कर गई, क्योंकि एक माँ की गोद में बच्चा हलक फाड़ कर रो रहा था और माँ की सारी कोशिश उसे चुप करवाने में नाकाम हो चुकी थी। नए साल की आमद उसके लिए नए शगुन नहीं लाई थी। क्या अब सारा साल उसे रोना ही पड़ेगा? खैर और भलाई उससे दूर रहेगी, बलाएं और शर उस पर हमला आवर होंगे। क्या खुशकिस्मती पर उसका कोई हक ना होगा? और क्या
और क्या उसका दिल खून के आंसू रोने लगा। खुसरो कमाली ने रुबाब को जरयूर में फेंका। उसने देख लिया था कि उसकी तरफ ज़ोहरा अफंदी की जगह एक शेर खड़ा था। वो जानता था उस शेर का नजर आना नजस है, नहस है, नजस है। चीनी परेड के इस और उस किनारे भी एक शेर अपना मुंह साफ कर रहा था, क्योंकि वो शिकार कर चुका था। वो मशरकी अखाड़ों का नगर नगर पाया जाने वाला शेर है। बानो कुदसिया कहती है, मोहब्बत मर्ग से पहले जन्म का नाम है, और मुझे ऐसा लगता है मोहब्बत जन्म से पहले मर्ग का भी नाम है। ये पहले आपको मार डालती है, फिर जी में आए तो जन्म दे देती है। ये पहले अंगारा बनती है, जी में आए तो गुलजार। ये मीम का प्रचार करती, माही माही मोहब्बत है। ये मीम से भींट लेती, मोहब्बत मर्ग मर्ग है। ये महाल, ये मोहरिक जला देने वाली, और ये महशर है। मोहब्बत मीम से, ये अमर से पहले मरन है। मोहब्बत मालूक कैर की गई, मोहब्बत मुस्तर, और ये मोहब्बत मुशरिक भी है। वो पाकिस्तान ही रह चुकी होती और इस पर ऐसा बुरा वक्त ना आया होता। काश पाकिस्तान में सब उसके लिए ठीक होता। उसे अपने माहौल से निकल भागने की तमन्ना ना होती, उसे यहाँ आने की चाह ना होती। वो शख्स जो उसके आगे पीछे दाएं बाएं अंदर बाहर हर तरफ था, जो हर तरफ से उसे अपनी तरफ नजर आता था, वो शख्स उसे सारी जिंदगी को ना मिला होता। लेकिन वक्त की कमान में उसकी अपनी मर्जी के तीर होते हैं और वो उन्हें अपनी मर्जी से ताक कर छोड़ता है। वो एक आंख मीचे, सांस कम लिए, निशाना बांधे बैठता है। अपने मनपसंद वक्त ये छोड़ा और शिकार चित। अब उसके पास उसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो खामोश रहे और सबसे दूर भी। तालीम मुकम्मल करे और घर जाए, और यही सब होना था। उदासी और खामोशी को लिए चंद दिन गुजर गए और बकौल बानो कुदसिया मुस्कुराहट समेत वो गायब होने का फन जानता था। आलियान फनकार उसे इन चंद दिनों में कहीं नजर न आया था। उसने उसे ढूंढना नहीं चाहा था, फिर भी वो गायब होने का फन सीख चुका था।